हो गया? किसको एडमिन बना रहे? मैं खुद बना। अच्छा, okay. Good morning, everyone. We will continue with the topic solid state, and yesterday we had seen crystalline solids, their classifications, ionic solids, covalent network solids, molecular solids, and metallic solids. Now today we will take the most important part of this chapter, that is crystal structure. Crystal structure, we will see how does a crystal structure form in a solid molecule. So crystal structure is what? It is a three-dimensional arrangement. Three-dimensional arrangement of particles in a repetitive manner, providing a crystal structure. So three-dimensional arrangement of particles. Three-dimensional arrangement of particles in a repetitive manner, providing a crystal structure. This is what we have to see. And how to get this crystal structure? It can be explained by taking two components into consideration. Two components. The first component is a lattice or lattice, what you pronounce lattice, and another is basis. So lattice and basis, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा. अब लैटिस क्या है? सिंपल सी लैटिस का जब हम डायग्राम देखें तो लैटिस इज व्हाट? द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन स्पेस. थ्री डायमेंशनल arrangement of particles, not particles, three-dimensional arrangement of points. Three-dimensional arrangement. Three-dimensional arrangement of points in the given space. तो ये हो गए आपके लैटिस. अब इसमें हम बेसिस को ऐड कर देते हैं. Basis can be ion. Basis means constituent particles. Constituent particles that can be ions, atoms or molecules. So basis point, जैसा डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं कुछ वैसा ही ड्रॉ कर लेता हूं. तो इसको तो थोड़ा डार्कन सर्कल बनाना है तो छोटा कर लेते हैं इसको. ये एक डार्कन सर्कल हो गया और इसके ऊपर एक छोटा वैकेंट सर्कल बना दिया. सो दिस इज बेसिस. दिस इज लैटिस पॉइंट्स, है ना. पॉइंट्स अरेंज in three-dimensional repetitive manner. तो ये three-dimensional repetitive manner में arrangement and basis are the constituent particles. इनको जब आप arrange कर लेते हैं, इसका meaning क्या हो रहा है कि ये constituent particles जब ये points पे चले जाएंगे, constituent particles when attached to this points we get a crystal, we get
a crystal lattice, or we get a crystal structure. So to get a crystal, we have to add lattice points and bases. Bases क्या है? Constituent particles attached. So these are the constituent particles. When constituent particles attach to this particular, अब डायग्राम थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, because we have to darken this circle, and minimum 4 we will take here. तो ये डायग्राम आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड सी दिस डायग्राम वेयर लैटिस पॉइंट्स एंड बेसिस आर कंबाइंड टू गेट द क्रिस्टल. क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? अब इसके ऊपर में ये देखिए हमने क्या कर लिया, एक वैकेंट सर्कल यहां पर अटैच कर दिया. तो लैटिस पॉइंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उस 3 डायमेंशनल में आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अटैच कर दीजिए तो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा. दिस इज व्हाट इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ये डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डॉट्स फाइनर पॉइंट्स दिख रहे, उतने दूर से तो शायद ना दिखे, लेकिन फाइनर पॉइंट्स, देन बेसिस, और उसको बेसिस को ये पॉइंट्स पे प्लेस कर दिया आपने, तो वो क्या बन गया? एक पूरा क्रिस्टल. जैसे यहाँ पर समझने के लिए मैं ये लैटिस पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूं. I place this lattice points in a given 3 dimensional. ये पॉइंट्स हो गए. अब ये पॉइंट्स को मैं अरेंज एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूं. I connect them together. कनेक्ट कर दिया. And if they are connected through their edges also, what we get? A cubic crystal. और ये क्यूबिक क्रिस्टल में ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? व्हाट वी प्लेस हियर? वी प्लेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो जैसे यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपने रख दिया तो ये बन गया क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो to get a crystal structure, lattice points will be filled by or will be attached by basis, that is constituent particles. अब यहाँ पर सोडियम एटम लगा दीजिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, तो ये 8 सोडियम के पॉइंट्स आ गए और आपको एक सोडियम का क्रिस्टल यहाँ पर मिल गया. आपने पोटेशियम लगा दिया, पोटेशियम को ये पॉइंट्स पे रख दिया, पोटेशियम का क्रिस्टल आपको मिल जाएगा. तो क्रिस्टल अगर हमें चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो करना क्या होगा? लैटिस पॉइंट पे हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अटैच करना है. दैट इज व्हाट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है कैसे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ crystal lattice. Large number of crystal lattice. Now crystal lattice is what? Is the smallest, simplest, basic unit, smallest, simplest, basic unit, smallest, simplest, basic unit, which is repeatedly arranged in 3-dimensional array. 3-dimensional arrangement में
ये क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन हम देख रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस? So smallest, simplest basic unit which is repetitively arranged in a 3-dimensional array। ये array का मीनिंग क्या हो गया? जो आप देखते हैं, array means arrangement। तो ये 3-dimensional arrangement में जब smallest unit को आप अरेंज करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो एक क्रिस्टल बनाने के लिए to get a single crystal we need many numbers of crystal lattice। तो crystal lattice क्या है? जैसे जैसे ये वॉल को हम कंसिडर करें तो वॉल जो यहां पर बनी इसमें सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक। ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट, वो ब्रिक है। ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए कुछ हम दूसरे मटेरियल को यूज करते हैं, लेकिन इट इज द ब्रिक विच गिव्स द शेप टू दिस रूम। करेक्ट है? तो वैसे ही किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर हमें मिलाना है तो उसके लिए हमको क्रिस्टल लैटिस को ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हेन वन क्रिस्टल लैटिस is joined with the other crystal lattice, so large number of crystal lattice when come together, then a single crystal structure is formed। जैसे आपको याद होगा, आपने मुझे बोला था कि कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन। फुलरेन याद है सभी को? फुलरेन में 60 कार्बन एटम्स एक साथ रहते हैं। 60, उसका फॉर्मूला ही वैसा बोलते हैं कि फुलरेन जो है ना, फुलरेन जो है वो C60। तो 60 कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे? बेसिस। और वो कार्बन एटम हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल फॉर्म में जब अरेंज हो जाएंगे तब आपको एक फुलरेन मॉलिक्यूल मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पर ये जो कार्बन एटम है ये क्या हो गए? एक तरह से लैटिस पॉइंट और क्रिस्टल, रादर दे आर द क्रिस्टल लैटिस। रिपीटेटिव यूनिट क्या है? कार्बन। ऐसे 60 कार्बन को हेक्सागोनल पेंटागोनल अरेंजमेंट करते जाएंगे तो आपको एक सॉकर बॉल का शेप मिल जाएगा, फुटबॉल का एक हॉलो स्फीयर मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज फुलरेन। तो ये एक मॉलिक्यूल, एक क्रिस्टल हुआ। जैसे मैंने कल भी कहा था, डायमंड, डायमंड जो है वो एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उसमें क्रिस्टल लैटिस रिपीटेटिवली अरेंज है। और वो क्रिस्टल लैटिस क्या है? यहाँ पर कार्बन। और कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। तो वो बनाते कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, और वो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कार्बन के एज अ क्रिस्टल लैटिस वहां अरेंज जब हो जाएंगे और हाई प्रेशर में जब वो कंप्रेस करेंगे तो हार्डेस्ट मटेरियल मिलेगा, डायमंड। तो व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? द स्मॉलेस्ट simplest basic unit of a crystal which is repetitively arranged in a 3-dimensional manner is what we call as crystal lattice। और क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम अगर देखना है तो यहीं पर देखते हैं, ये क्यूबिक क्रिस्टल को देखते हैं। सो सी हियर, नाउ दिस इज अ क्यूबिक crystal lattice। cubic crystal lattice it is। अब इसका स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा कि आपने यहां तो समझ लिया डायमंड में कि वो नेटवर्क बन गया। जो दूसरे सॉलिड्स है जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गया या आयोनिक सॉलिड्स हो गया, उसमें क्या होता है कि एक क्रिस्टल लैटिस दूसरे क्रिस्टल लैटिस के बाजू में, ऊपर नीचे चारों तरफ से उसका वो क्रिस्टल लैटिस एक दूसरे से रिपीटेटिवली अरेंज होते जाते।
तो वो क्या शेयर करेंगे, जैसे ये क्यूब को हमने बात किया, तो एक क्रिस्टल लैटिस दूसरे क्रिस्टल लैटिस के साथ में उसका फेस जो है वो शेयर कर सकता है, उसका एज जो है वो शेयर कर सकता है, और फेस एज एंड थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, फेस एज एंड एक और चीज है ना रे, क्या है, फेस एज और क्या है, एक पॉइंट है ना, और कुछ तो भी है, व्हाट इज दैट, एक्स, इट विल शेयर फेस एज एजेस जो है एंड कॉर्नर, यस डियर, थैंक यू सो मच, एंड कॉर्नर्स, क्योंकि अभी ये कॉर्नर्स एजेस एंड फेसेस दे आर शेयरिंग। तो ये एक क्रिस्टल लैटिस, इसके बाजू में दूसरा, तो दूसरा वाला कैसे आ जाएगा, अब यहां से फेस से अटैच हो जाएगा, ये इसके फेस में अटैच हो गया यहां पर, तो ये चला अपनी 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 लाइन पे, तो यहां से रिपीट होगा, यहां से आप इसे रिपीट कर सकते हो इन ऑल द 3 डायमेंशनल मैनर, दिस कैन बी रिपीटेटिवली अरेंज। सो क्रिस्टल लैटिस they are arranged repetitively in 3-dimensional manner, and they share corners, they share faces and edges also। जैसे एक ये एग्जाम्पल देखते हैं हम, मेरे पास में ये कुछ एक सिंपल सा देख लीजिए, ये एक क्यूब बन गया यहाँ पर, ये क्यूब में ये एजेस हो गए, ये इसका फेस हो गया, और यहाँ पर कॉर्नर। अब अगर मुझे दूसरा क्यूब इसके साथ में अटैच करना है, तो दूसरा क्यूब समझने के लिए, ये दूसरा क्यूब इस तरह से आ गया, तो इन्होंने शेयर क्या किया, फेस, इसका बॉटम इसका टॉप, ये फेस शेयर कर लिया। अब ये अपर साइड में आ गया, ये फ्रंट साइड से आएगा, ये लेफ्ट से आएगा, ये राइट से आएगा, बैक साइड से आएगा। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, हाउ मेनी फेसेस वी सी इन अ क्यूब, नहीं चलता है, जो करता है उसी से कुछ मिस्टेक भी होती है, जो नहीं करता वो सिर्फ बैठा रहता है और हंसता रहता है। थैंक यू, आप भी उठ सकते थे। सो एक क्यूब ये आ गया। अब क्यूब के स्ट्रक्चर को अगर समझना है, डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल को समझना है, तो उसमें ये 3 एक्सिस, 3 एजेस ए बी एंड सी, और इसके 3 एंगल है ना, तो वो 3 एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये अल्फा एंगल हो गया, ये बीटा आ गया यहाँ पर, और गामा यहाँ बनेगा। तो ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का, एक क्यूबिक क्रिस्टल का डायमेंशन कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे याद करना है, क्योंकि ये एजेस और उसके एंगल बदलते जाएंगे और हमें ये डिफरेंट अरेंजमेंट मिलने वाला है। क्रिस्टल लैटिस को जब आप कंसिडर करते हैं, व्हेन यू कंसिडर अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्यूबिकल शेप, मैथमेटिकली देखा गया कि ये क्रिस्टल लैटिस को हम 14 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैथमेटिकली देयर आर 14 पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन अरेंज देम इन डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस देखते हैं आप, by mathematical analysis it has been proved that only 14 different kinds of space lattices are possible। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। गिवन स्पेस में अरेंज्ड है ये सब, वी कॉल देम एज स्पेस लैटिस। तो ऐसे 14 स्पेस लैटिसेस पॉसिबल है, 14 अरेंजमेंट पॉसिबल है, और वो 14 अरेंजमेंट
को हम बोलते हैं VAIS ना, VAIS, यस, VAIS, यस, ब्रावियस लेटाइसिस, है ना। तो ब्राविया लेटाइसिस में क्या है, 14 ब्राविया लेटाइसिस है, उसको 7 तरीके से हम याद कर लेंगे कि उसी का रिपीटिशन होगा तो वो 14 में कन्वर्ट होने वाले। तो कमिंग बैक टू once again crystal lattice, smallest simple basic unit, repetitively arranged in given 3 dimension, and this will provide a crystal. A cubic crystal has 3 edges A, B and C, and in between 3 angles, that is alpha, beta and gamma are the 3 angles possible. So this 3 angle and 3 edges of cube provides us 4 types of cubic arrangement. 4 types of cubic arrangement कौन कौन से हैं? आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, 4 टाइप के हैं अरेंजमेंट। पहला क्या है, क्यूबिक में क्या है, प्रिमिटिव करके है, क्या प्रिमिटिव, यस। सेकंड क्या है, बॉडी सेंटर्ड, BCC। नेक्स्ट क्या है, FCC। और कुछ है एक टाइप का, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको अलग से लिख लेते हैं, है ना। तो एक प्रिमिटिव टाइप का है, यानी एकदम सिंपल प्रिमिटिव टाइप। अगर मैं बोलूं तो आपके समझने के लिए प्रिमिटिव टाइप में इसे आप समझ सकते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप जहां पर ये कॉर्नर्स, है ना, corners are occupied by the bases constituent particles में ये corners, 8 corners है क्यूब में। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी फेसेस इन अ क्यूब, 6 फेसेस एंड 8 corners, है ना। तो ये 8 corners आप देख रहे हैं, they are equally uniformly occupied by the bases, that is the constituent particles। ये प्रिमिटिव टाइप का हो गया। नेक्स्ट आपको समझना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को समझना है, नहीं ये फेस सेंटर्ड है, वही नहीं है, मुझे मालूम है क्या है। तो अरे यार, ये तो सब अपना गड़बड़ घोटाला हो गया इसमें। यहाँ इसको हम ड्रॉ करके समझ सकेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, लेट अस ड्रॉ दैट। और उस डायग्राम में होगा क्या, 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जरा मुझे कैलकुलेशन करके बताना आप लोग कि कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए इसमें। ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, और मुझे अभी क्या बनाना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC शॉर्ट फॉर्म में जिसे बोलेंगे हम। अब क्या होगा कि ये पूरे क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल सिचुएटेड है। A single particle, complete particle is situated at the center. This is what we call as body-centered cubic structure. So a particle is at the center, तो वो complete particle यहाँ पर इस क्यूब के बीच में रहेगा। अब टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए इसमें, 2 पार्टिकल। कैसे आ गए 2? यस, ये जो रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, और ये कितने कॉर्नर्स है, 8, तो ये 1 मिल गया। और इसमें एक अटैच हो जाएगा जो पूरा सेंटर में है,
ये पूरा कंप्लीट एक ही क्यूब में है, तो 100% इसका कंट्रीब्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए? 2। और ये प्रिमिटिव में टोटल पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 1। 1। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रिमिटिव second body centered cubic structure. Now next comes the face centered cubic structure. Face centered cubic structure. तो आपको ये सब ड्रॉ करने होंगे, है ना? You should learn how to make. ये ऑनलाइन क्लास नहीं है अपना, है ना? ये ऑफलाइन क्लास है, तो यू शुड बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन। तो जहां जहां हमको लगता है हमने खुद होके ड्रॉ करना चाहिए। सही है। आगे कॉर्नर पे, अब फेस सेंटर्ड आपको समझना है, तो यहां देखेंगे इसमें ये 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्नर दिख रहे हैं 4। इस फेस के सेंटर में ये एक पार्टिकल आ गया, इधर टर्न किया, ये फेस के भी सेंटर में है, इसको टर्न किया, फेस में है, टर्न किया 4 टाइम्स हो गया, 4 फेसेस, 1 इज हियर, द अदर इज हियर। सही है। तो यहां पर कॉर्नर ऑक्यूपाई हो गए। फेस सेंटर को रेड डॉट से मैं यहां पर शो करता हूं। ये अपर, ये देखिए, ये 4 कॉर्नर्स, 4 फेजेस हो गए। अभी 2 और बाकी है, एक सामने वाला और एक इसके पीछे वाला। सामने वाले का सेंटर यहां पर और पीछे वाले का सेंटर समवेयर हियर। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल रहेंगे? 1/8 × 8 यानी 1 तो रहेगा। अब ये फेस में आप देखेंगे कि यहाँ जो हमने बॉल लिया था वो हाफ कट करके लगाया गया है। तो इसका जब इसके बाजू में दूसरा आएगा तो वो भी अपना फेस सेंटर्ड लेके आएगा और ये दोनों शेयर करेंगे। तो ये हाफ और इसके अंदर का हाफ 1 कंप्लीट पार्टिकल होगा। तो हाफ इंटू 6, हाउ मेनी? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। फेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब इसको देख लीजिए। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी 2 of its opposite phases. Any 2 of its opposite phases in addition to the corner particles. यहाँ डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिया होगा उसने, है ना? ये डायग्राम जो है, ये वाले डायग्राम में आपको ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फिर से एक बार, this unit cell consists of particles at the center of any 2 of its opposite phases. Any 2 of its opposite phases. ये है क्या? ये opposite phase है, यहां भी है और इधर भी है। तो ये हो गया एक यूनिट सेल। तो क्या बोला है फिर से? एनी 2 of its opposite phases in addition to the corner. कॉर्नर है और यहां पर इसके ये वाले फेज में, एक्चुअल ये फेज एनी 2, फेज कौन से लेने हैं? एनी 2। हमारे पास तो 4 फेजेस अभी और बाकी है ना? ये 4 फेजेस, बट दिस 2 आर अपोजिट फेजेस एंड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड हियर। नेक्स्ट वाला भी जो आएगा, जैसे यहां देखिए ना, ये कैसा है? ये फेस सेंटर्ड हो गया। अब अगर हम सिर्फ सामने का फेस कंसिडर करें तो वो इस तरह से फेज आ जाएंगे उसके। तो ये एक फेस सेंटर्ड हुआ, ये फेस सेंटर्ड हुआ, अपोजिट टू ईच अदर, और ये अब शेयर कर रहे हैं फेस। फेस शेयरिंग हो गया तो ये पार्टिकल भी शेयर कर रहे हैं, कंप्लीट पार्टिकल आ गया। तो इसका कैलकुलेशन कोई बोल सकेगा मुझे? ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 1/8 × 8 is 1, 1/2 × 2
1 तो टोटल 2, और 2 काय में आया था हमारे लिए, बीसीसी में, है ना। बीसीसी में 2 आ गया था, एफसीसी में 4 आ गया था, और फिर से बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें फिर से 2 पार्टिकल्स टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया उसका। ये ओके कर इसको तो देख, इतना पढ़ने में बिजी हो जाती ना वो। हाँ जी, सो कमिंग बैक टू द क्यूबिक सिस्टम। तो कौन कौन से सिस्टम पढ़ लिया आज हमने? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। द 7 systems are named, यहाँ पर है 7 crystal systems are associated with 14 Bravais lattice, also called 14 unit cell. 7 crystal systems are named as, तो ये 7 crystal system जो है ये देखने का है, अभी आप बताएंगे मुझे कैसे याद रखना है इसको। 7 जो है क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखना है। ये मिटाते हैं यहां से। सेवन क्रिस्टल सिस्टम, ये आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें बॉन्ड एंगल रहेगा, है ना। क्रिस्टल सिस्टम के नेम रहेंगे, तो इसको याद करने के लिए क्या क्या है? COT, MRTH, कोट मिस्टर ठीक है ना। अब इसको आप डेवलप कर लीजिए। ये क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये क्या है? टेट्रागोनल, ये क्या है? मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, और ये हेक्सागोनल। तो कोट मिस्टर ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अब इसमें जैसे क्यूबिक में दिया है 3 टाइप, सिंपल, बॉडी एंड फेज, ये टेबल देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक वाला। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप है, सिंपल दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। देन टेट्रागोनल इज सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड, ये 14 मिल जाएंगे आपको, है ना। 7 आ गए ये, तो ये 7 क्रिस्टल के 14 और सब डिवीजन जो होंगे, so that is what we call as 14 Bravais lattice से हमको बेसिक जो है ये 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा। 7 एक अपना ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी में भी है ना, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स कौन कौन सी स्टेट्स है 7 सिस्टर्स में? सेवन सिस्टर्स। वो उसको भी कुछ याद करने का एक था ना, क्या थोड़ा ATM, आना, मम्मी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम,
हाँ, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। मणिपुर। अरे मणिपुर है ना रे, हिंदी भी तो। मणिपुर, 7 सिस्टर्स है ना। और ये 7 सिस्टर्स का एक भाई भी है, 1 बिग ब्रदर। वो क्या है? आपके सामने पेश है 1 करोड़ का सवाल। ऑप्शंस देता हूं मैं। ऑप्शन, वो महाराष्ट्र है, गोवा है। एक आंसर, एक ही तो करेक्ट रहेगा उसमें। नहीं नहीं, वो तू ढूंढ मत उसमें, है ना। ऑप्शंस है, महाराष्ट्र है, गोवा है, और बाजू में कौन है? मध्य प्रदेश है। 3 हो गए। 4th रहेगा सिक्किम। यस, सिक्किम। हाँ, हम बांट लेंगे सब मिलके। हाँ जी। तो ये 7 सिस्टर ATM आना मम्मी वो याद रहेगा, और उसका बिग ब्रदर वो भी याद रहेगा। लेकिन हमें याद क्या रखने का है? कोट मिस्टर ठीक है, कोट मिस्टर ठीक है। और इसमें ये 7 क्रिस्टल अरेंजमेंट हो गए। मैंने आपको ये पार्टिकल के कैलकुलेशंस भी सिखा दिए अभी। तो यहाँ से ये आपके टेक्स्ट बुक का यूनिट 1.5.1 जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी आपने समझ लिया। और यहाँ पर एक्चुअल ये बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं तो पूरे प्रीवियस क्लास में इन सब के बॉन्ड एंगल और एक्सिस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और वो 90 डिग्री और अलग अलग उसके होते थे। तो चलिए, इसमें क्यूबिक समझ गया आपको, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल ये भी रहेगा, मोनोक्लिनिक, रोम्बाइड्रल, क्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट, दिस इज हेक्सागोनल अरेंजमेंट। तो इसमें ये पार्टिकल्स जो है ये हेक्सागोनली अरेंज है। ये 6 दिख रहे हैं, फिर 3 साइड से देखेंगे तो 3 दिखेंगे, और यहां से ये फेस को अगर देखें तो आपको 3 एक साथ दिखेंगे। लेकिन 6 लेयर, 6 की लेयर, दूसरी 6 की लेयर, फिर 6 की लेयर। लेकिन जब आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 3 दिखने वाले हैं। जैसे यहां से आप अरेंज करके देखें तो यहाँ ये 3 बॉल्स आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे, यहाँ 2 ग्रीन और 1 रेड कंप्लीट दिखेगा। तो 3 फेस में दिखते हैं, लेकिन लेयर फॉर्म में रहेंगे। लास्ट में देखेंगे ये हेक्सागोनल दिया हुआ है ना। अब ट्राई क्लिनिक की बात है, तो ट्राई क्लिनिक भी शायद है हमारे पास। ये है ट्राई क्लिनिक, टेढ़ा है ना, ट्राई क्लिनिक। तो ये ट्राई क्लिनिक में भी उसके अपोजिट फेज में हाफ आ रहे हैं, है ना। हाफ ये एक फेज में और ये वाले फेज में हाफ आ रहे हैं। बाकी के ये दोनों चारों भी फेज जो है वो क्लियर है। तो ये ट्राई क्लिनिक हो गया। हेक्सागोनल आपने देखा। देन रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल क्या बनेगा? आई डोंट नो। उसका एंगल क्या दिया है क्या? रोम्बोहेड्रल का एंगल नहीं दिया हुआ है। तो यू कैन कंसिडर, है ना, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को कुछ इस तरह से पिक्चराइज किया है। रोम्बोहेड्रल, ये एज आपके सामने है। रोम्बोहेड्रल में एज आपके सामने है और एक एज पीछे चला गया, तो ये रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। देन कम्स मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के बाद मोनोक्लिनिक, ये होगा मोनोक्लिनिक। ये टेट्रागोनल है। ऑर्थोरोम्बिक, और कुछ है क्या? एक और ये कौन सा रहेगा? ये तो रिपीटिशन दिख रहा है। ट्राइक्लिनिक टाइप ही हो गया ये भी।
Triclinic? No, not of the same type. Yes. Triclinic. Triclinic प्रिमिटिव टाइप, और ये ट्राइक्लिनिक जो है ये प्रिमिटिव यानी सिर्फ कॉर्नर बेसिक, और ये ट्राइक्लिनिक में आपको दिख रहा है तो फेस